Hello, good morning, everyone, and welcome again in my lecture series NCERT Science Class 6. And we have done the chapter 4 theory, right? Getting to know the plants. Today, we will create a mind map for this chapter, as well as we will solve all the exercises and some extra question, as well as MCQs from this chapter. So, let's get started. So first the mind map, we have the chapter name, that is getting to know plants, and let's start it with the first we studied about the stem. Okay, so there was a part which is stem, so we can write here stem, and in stem we discussed about like what is stem. Okay, and as well as their function. So stem means it is you can say link between roots, leaves and flowers, and basically its functions also we discuss about. So first is we can say meaning, and these are the functions. Okay, so functions. So functions of stems means it carries water and minerals from root to other plant parts, and also it support branches, flowers and fruits. So in functions we can say first it carries water and minerals. Carry water and minerals from roots to other plant parts. Okay, we discussed about this function, all right, if you remember. Second, also it also conduct food. Okay, so it conduct food from leaves to other plant parts. Two-way traffic system, right? This is the second function. Third function of stem is it support branches, flowers and fruits. Yeah, it bears, so it supports branches, flowers and fruits. So these are the function of stem, and meaning of stem means it as a link between root, leaves and flowers. So we can say, we can understand stem like it is link between roots, leaves and flowers. Clear? So it was about the stem. Next, if you remember, next part we have discussed about the plant classification. Okay, so plant, we can classify the plants into various types. Classification. So in plant classification, one is like a tree. So tree we can divide into tree, and second one in the shrubs, then herbs, then climbers and creepers. Climbers and creepers. Okay, so trees mean which have hard and thick stem, branches above the ground. So tree we can say hard
and thick stem. Okay, and branches above the ground. That is your trees. Shrubs means that develops branches near base of the stem and hard but not very thick stem. So you can say hard but not thick stem. That is shrubs. So you can circle this thing. Okay. And branches were just above the ground. Branches you can say near the base of stem. Herbs you can say green and tender stem. Herbs simply means green and tender stem. Simple. Climbers means stems take support and climb up. Stem take support and climb up. Creepers means weak stem cannot stand upright or it spread on ground. So you can say weak stem. Cannot stand upright and spread on ground. That is the creepers. Simple. Got it? If you remember all these terms. Next we studied about the root and flowers and leaf. So let's first complete the stem shoot system. That is the second part is flowers. So one was stem, second was flowers. So yes, it's second flowers. So in flowers we discuss about the meaning and functions. So function means it contain male and female reproductive parts. Okay, and for aesthetic look also. So you can say first you can divide the parts. And parts of flowers were, if you remember, flower have one is sepal, petals, stamen, that is male reproductive part, and pistils. Okay, these were the parts of flowers. And flowers function is it is a reproductive part. Okay, it contains male and female reproductive part. Also we use the flowers for aesthetic look. So sepals, green leaf like structure, petals, bright colors. So these are the parts of flowers. Then we have leaf. Okay, so leaf, again leaf part and their function. So part of leaf are means vein, midrib and lamina. So it has veins, midrib, middle dominant prominent line, and the lamina, that is the blade, flattened blade. And functions is one is the photosynthesis, it prepare food, it release water vapor by the process of transpiration. So functions we can say one is it prepare food by photosynthesis. Okay, food for plant, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. Second is it release water vapor by transpiration. So second is it release
water vapor by transpiration. Okay, so both process are important for any plant. Next we studied about the part that is root. Okay, you remember that part? हमने डिस्कस किया था रूट, देयर फंक्शंस, देयर पार्ट्स. ओके, और रूट्स क्या होते हैं? दीज आर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट. सो हम रूट को कर लेते हैं यहाँ पे डिस्कस. ओके, सो नेक्स्ट इज वी हैव roots, and roots means you can say underground part of the plant. That is root system. So parts or types you can say. So first it's parts. So parts means it may be tap root or it may be fibrous root. Tap root and fibrous root. Second, functions. Functions क्या होते हैं आपके roots के? Functions में आ जाता है first it absorb water and minerals, okay, which is required for the plant. So first is absorb water and minerals. From soil. Okay, second is it also anchor or give firmness. It hold tightly the plants, so it anchors plant. Third, also it prevents soil erosion. Okay, prevent soil erosion. So it was all about this chapter. हमने basically इस chapter में ये सब ही किया है. Roots, their parts, their functions, and we studied about leaf, their parts, their functions. Okay, leaf में veins, midrib and lamina. और इसमें हमने एक वो भी किया था कि जो लीफ का जो वेनेशंस होते हैं, जो डिजाइंस होते हैं आपके ना वेन्स के, तो वो रेटिकुलेट और पैरेलल भी होते हैं. So it was all about the mind map. Okay, next we have exercises. So yes, first question is correct the following statements and rewrite them in your notebook. So first statement is stem absorb water and minerals from the soil. So no, it is not stem that absorb water, it is root. Okay, so roots absorb water. Leaves hold the plant upright. No, it's not leaves, this is stem. So stem hold the plant upright. Roots conduct water to the leaves. No, stem conduct water to the leaves. The number of petals and stamens in a flower is always equal. No, is not always equal. ऐसा कोई compulsion नहीं है. If the sepals of a flower are joined together, its petals are also joined together. No, it's not compulsory. If the sepals of a flower are joined together, its petals are separate and not joined together. So its petals are separate and not joined together. If the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petals. No, if the petals of a flower are joined together, then you can say the pistil is not necessarily joined. So then the pistil is not necessarily joined to the petal. All right. Question second, draw a leaf, taproot and a flower. You have studied. So ये सब आप draw कर लेंगे. Okay. Question 3, can you find a plant in your house or in your neighborhood which has a long but weak stem? Write its name and which category will you place in it. So question 3 कहता है कि आप जो है ऐसा प्लांट बताएं
जो लॉन्ग हो, स्टेम वीक हो, उसको हम क्या कहते हैं? ओके, किस कैटेगरी में आप उसे रखेंगे? सो आंसर 3 हम यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर 3। ओके, हम यहाँ वी कैन राइट हियर। सो दिस इज द आंसर इज द मनी प्लांट। मनी प्लांट जो घरों में होता है वो स्पोर्ट से क्लाइंब अप करता है। ओके, सो आंसर इज मनी प्लांट। और कैटेगरी, बिकॉज ये स्पोर्ट्स के सहारे क्लाइंब अप करता है तो इट इज ए क्लाइंबर। ओके, सो दिस इज ए टाइप ऑफ क्लाइंबर। ऑलराइट, क्वेश्चन 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्टेम? फंक्शन ऑफ स्टेम हमने लिखा भी है कि आप जो है आपका स्टेम ये होल्ड करता है ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को। ये कंडक्ट करता है वाटर को रूट से लेके अदर प्लांट पार्ट्स को। थर्ड, ये कंडक्ट करता है फूड को लीव से लेके अदर प्लांट पार्ट्स तक। ये यहीं पे आपका सेकंड स्टेटमेंट था, इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट। ये भी स्टेम करता है, इट कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, ये भी स्टेम करता है। तो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ ए stem in a plant. Question is, which of the following leaves have the reticulate venation? Reticulate venation means network. Okay, net like network. So that is the reticulate venation. So in wheat there is parallel, tulsi there is reticulate, maize parallel, grass parallel, coriander reticulate venation, and China rose reticulate venation. So we have like diagrams. This is tulsi. Okay, और तुलसी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क बना हुआ है। इफ़ यू सी, सो दिस इज द नेटवर्क। ओके, बीच में आपका। सो तुलसी में आपका कौन सा हुआ? तुलसी कंटेन्स रेटिकुलेट वेनेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट कोरिएंडर। कोरिएंडर, धनिया, सो इसमें भी आपका होता है रेटिकुलेट वेनेशन। आप देखेंगे तो यहाँ नेटवर्क बना हुआ है। देन वी हैव द चाइना रोज। ओके, सो चाइना रोज में भी लीव्स में होता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, अदर जो एग्जांपल्स हैं वो सब पैरेलल वेनेशन के। क्वेश्चन 6, इफ द प्लांट हैज फाइब्रस रूट्स व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स हैव? सो नॉर्मली ऐसा पाया गया है कि जिस प्लांट्स के रूट्स फाइब्रस हो तो उसमें लीव्स में होता है पैरेलल वेनेशन। ओके, इफ द प्लांट has leaves with reticulate venation, what kind of roots? इसका वाइस वर्सा हो जाएगा कि अगर आपका रेटिकुलेट है तो वहाँ पे होंगे टैप रूट। ऑल राइट, सो पैरेलल वेनेशन आप कह सकते हैं। क्वेश्चन is it possible for you to find out whether a plant has tap root or fibrous root by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper? You can say yes, it is possible. We can identify the type of leaves by looking at its roots. Okay, and we can tell about the type of roots if we look at the impressions. When plants have leaves with reticulate venation have taproot, and plants having parallel venation, they have fibrous roots. So what are the parts of a flower? So parts of flowers आपने sepals, petals, stamens and pistils. So we can write here sepals, outermost green leaf like, petals colorful जो आपका होता है, stamens आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव है, pistil, और कार्पल जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव है। क्वेश्चन इज, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स? सो किसमें फ्लावर्स हैं? ग्रास में फ्लावर नहीं है। ओके, मेज में फ्लावर है, आपका वीट में फ्लावर है, चिल्ली में फ्लावर, टमाटो, तुलसी, पीपल, सीसम, बैनियन, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमेग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन। शुगर केन में फ्लावर नहीं है, पोटैटो में फ्लावर है, ग्राउंडनट में फ्लावर नहीं है। तो इनमें आपके फ्लावर नहीं है। ओके, बाकी सब में फ्लावर है आपका। नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस फूड। सो फूड कौन सा पार्ट आपका करता है?
So food is prepared by leaves and the process is known as photosynthesis. Okay, photosynthesis. ऑलराइट, ये तो बहुत ही सिंपल आ गया, इतना सिंपल तो आपको मिलता है नहीं. इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी. सो जो कौन से पार्ट में आपको ओवरी मिलती है. तो ओवरी हमारा किसका पार्ट है, पिस्टिल, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव है. ओवरी जो आपका बेसल स्वोलन लोअर मोस्ट पार्ट था वो हमारा ओवरी था. नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज ज्वाइंट सेपल्स एंड अदर हैज सेपरेट सेपल्स. ओके, सो हम इसका लिख देते हैं कि प्लांट्स विद ज्वाइंट सेपल्स. सो इसके तो एग्जाम्पल रहेंगे आपका टमाटो एंड धतूरा फ्लावर. सो टमाटो फ्लावर एंड वन इज धतूरा एंड हैज सेपरेट सेपल्स. सो सेपरेट सेपल जिसमें होते हैं उसका एग्जाम्पल है आपका लोटस एंड रोज. ओके, फ्लावर. अब आप एक बार इसकी इमेज आप देख लेंगे कि लोटस एंड रोज में है जो सेपरेट होते हैं सेपल्स. सेपल जो आपके आउटर मोस्ट ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं एंड टमाटो एंड धतूरा में आपके ये ज्वाइंट होते हैं. ओके, सो लाइक दीज आर द इमेजेस. दिस इज टमाटो फ्लावर एंड दिस इज धतूरा फ्लावर एंड यू कैन सी हियर ये आपके यहाँ से ज्वाइंट है, यहाँ से आपका ज्वाइंट है, सेपरेट नहीं है. ओके, एंड हियर यू कैन से इट इज कंप्लीटली ज्वाइंट सेपल. सेपल आपका ज्वाइंट होता है धतूरा और टमाटो फ्लावर में. नेक्स्ट विल सी द सेपरेटेड. सो सेपरेटेड आप देखेंगे कि बिल्कुल लास्ट यहाँ तक सेपरेटेड सेपल्स हैं आपके रोज में एंड लोटस में तो बिल्कुल ही नीचे तक सेपरेटेड हैं, आप अलग से देख सकते हैं. ऑलराइट, सो ये था आपका एक्सरसाइज. नेक्स्ट विल डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. सो लिस्ट फ्यू प्लांट्स फाउंड अराउंड योर हाउस. सो जो भी आप देखें आप उनकी एग्जाम्पल लिख सकते हैं. आर ऑल द प्लांट्स सेम इन साइज. नो, साइज सेम होता तो हमें ज़रूरत नहीं होती बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन की. हमने यूज कर रखा है हाइट को भी एज ए पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन. मीन्स जो हर्ब होते हैं स्मॉल होते हैं, शब्स हैं, उनको शॉर्ट कह सकते हैं, बहुत टॉल नहीं होते. ट्राइज दे आर वेरी टॉल. व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. सो मेजर पार्ट्स आपका होता है स्टेम, रूट, लीव्स एंड फ्लावर्स. ओके, देन हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर देयर. सो देर आर बेसिकली 3 टाइप्स एंड क्लाइंबर एंड क्रीपर्स भी हैं, बट मेजरली हम कह सकते हैं हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज. नेम 2 प्लांट्स दैट बिलोंग टू हर्ब्स. ओके, सो हर्ब्स जिसका ग्रीन टेंडर स्टेम हो, टमाटो एंड पोटैटो. 2 एग्जाम्पल ऑफ शर्ब्स तो आपका लेमन एंड ऑरेंज है कि बहुत थिक स्टेम नहीं है बट बहुत ज़्यादा टॉल नहीं है आपका, और जो ब्रांचेज हैं वो आपके नियर द बेस ऑफ स्टेम से स्टार्ट हो जाते हैं. ट्रीज़ के एग्जाम्पल मैंगो एंड नीम और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. पिटियोल मीन्स द पार्ट और स्टॉक ऑफ ए लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू स्टेम. लैमिना जो ब्रॉड ग्रीन फ्लैट पार्ट होता है उसको बोलते हैं. वेन्स लाइंस ऑन द लीफ होती हैं उनको वेन्स बोलते हैं. मिडरिप जो थिक प्रोमिनेंट मिडल वेन होती है लीफ की उसको हम मिडरिप बोलते हैं. लीफ वेनेशन होता है डिजाइन मेड बाय वेन इन ए लीफ. तो ये आपका रेटिकुलेट भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है. सो ये आपके ये रेटिकुलेट वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन. ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन होता है कि एक जो ग्रीन लीव्स वाटर वेपर इवेपरेट करते हैं उनको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. प्रोसेस बाय विच वाटर कम्स आउट फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर. नेम द प्रोसेस बाय विच लीव कैन प्रिपेयर देयर फूड. सो फोटोसिंथेसिस. एंड व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स. सो sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll, that is the green color substance present in a leaf. So where does the photosynthesis take place? Leaves में होता है. Name the part of plant which helps in holding the plants in the soil. So soil में अगर hold करता है तो roots हैं, और upright अगर hold करता है तो that is stem. Okay. What are tape roots? So tape roots जिसमें एक मेन रूट होती है, अदर लेटरल रूट्स होते हैं, वो टेप रूट होते हैं आपका.
गिव नेम ऑफ टू प्लांट्स विच हैव टेप रूट्स, सो ग्राम एंड मस्टर्ड, इनमें आपका टेप रूट होता है. फाइब्रस मीन्स आपके ऑल रूट्स आर सिमिलर, सो ये है आपका वीट एंड मेज. लेटरल रूट्स आपके स्मॉलर रूट्स दैट ग्रो ऑन द मेन टेप रूट. ओके, सो ये इसके डेफिनेशन में आ जाता है जब हम टेप रूट लिखते हैं. Fibrous root which do not have any main root but all roots are similar. Does stem prepare food? Yes, there are some plants whose stem prepare food like cactus. तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे आपका जो स्टेम है वो भी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. नेम द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ए फ्लावर. सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड pistil. Sepals means small green colored leaf like structure. These are the outermost and it protects flowers. It is in stage of bud. What are petals? So petals are big leaf like structure present in flowers जो colored होते हैं. Okay, they attract insect for the pollination. ये इनका function होता है. Stamens mean when we remove sepals and petals, then we see filament in the flower which are called stamen. Okay, stamen के आपके these are the male part. Okay, एक stamen के part होते हैं filament and the anther जो lobe like structure होती हैं. This is long slender that support the anther is the filament. Okay, so ये आपका होता है stamen. Various parts of stamen, anther and filament. Pistil, innermost part, female reproductive. ओके, पार्ट्स हैं आपके ओवरी के भी, पिस्टिल के आप कह सकते हैं ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. ओवरी जो बेसल एनलार्ज स्वोलन पार्ट होता है, देन लॉन्ग आपका स्टाइल, और जो ऊपर आपका स्टिग्मा होता है जो कि पोलन्स को रिसीव करता है. ओव्यूल, स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी. फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस बाय विच लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. Pollination means the transfer of pollen from anther to stigma, वो होता है pollination. Where do we find ovules? Ovules हमारे कहाँ present होते हैं? Ovary में. What are weeds? Weeds means unwanted plants that grow in a field और किसी भी crop में जो grow होता है. Which part of plant absorb water and minerals? Root. What is leaf venation? Design made by vein in a leaf. Transpiration, loss of water in the form of vapor. And what are parts of stamen? Anther and filament. What is innermost swollen part? Ovary. Where food is stored? Food is stored okay, in leaves and in some plants in roots. और किस फॉर्म में होता है ये? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. ओके, सो ये आपके यहाँ तक 42 क्वेश्चन वो थे जो आपके बहुत स्मॉल एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स, जितने भी टर्म्स आए थे आपके सारे यहाँ पे ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुके हैं. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम देख लेते हैं. व्हाट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड? ट्रीज. ट्रीज होते हैं, दीज आर टॉल एंड दे हैव हार्ड थिक ब्राउन स्टेम. ओके, दे हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड. डिफरेंस बिटवीन स्टेम ऑफ शर्ब्स एंड ट्रीज. शर्ब्स का जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है बट बहुत थिक नहीं होता, जबकि ट्रीज का हार्ड एंड थिक होता है. क्रीपर्स होते हैं प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड दे स्प्रेड ऑन ग्राउंड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रीपर एंड क्लाइंबर्स? ओके, प्लांट्स विद वीक स्टेम दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, स्प्रेड ऑन ग्राउंड होते हैं क्रीपर्स, और जहाँ पे प्लांट्स टेक सपोर्ट ऑन नेबर स्ट्रक्चर एंड क्लाइंब अप वो होते हैं क्लाइंबर्स. Write the difference between reticulate and parallel venation. Give examples. So reticulate और parallel venation जो आपका डिजाइन बनता है वेन से इन लीव, if it is net like on both side of mid, so it is reticulate जो कि यहाँ रोज में होता है. And if veins are parallel to each other, then it is parallel venation जो कि wheat के leaves में होता है. What is photosynthesis? Means leaves prepare their food in the presence of sunlight by using water and CO2. So this is photosynthesis. Any two functions of root. Root क्या help करते हैं? First, it help in holding, means anchoring plant family in the soil, and also help in absorption of water and nutrient, or you can say minerals from the soil. Where is food stored in plant and in what form? So store form तो ये starch में ही होता है. Food is stored in leaves and in some plants in roots also.
What are different types of root found in? So types of root आप कह सकते हैं tap root, and smaller roots are called lateral roots, and other plants have fibrous roots, जहाँ पे सारे roots आपके similar होते हैं, कोई main root नहीं होता है. How are the leaf venation and types of roots in plant related? So ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि रेटिकुलेट आपका टेप रूट होता है और आपके पैरेलल वेनेशन फाइब्रस रूट होते हैं. What is the function of stem? Stem conduct water. By which process plant prepare? ये हम कर चुके हैं. In which part flower ovary is found? तो ये pistil में होती है. Ovule. What can be seen in inner part of the ovary? तो innermost में ovules होते हैं जो small bead like structure होते हैं. Photosynthesis take place in leaves. What do plants use for photosynthesis? तो जो भी raw material है वो आपको लिखना है. From where plant gets water? So soil से मिलता है जो कि root absorb करता है, then root से conduct करता है stem to every part of the plant. Which are two gases involved in photosynthesis? CO2 जो absorb करता है, O2 oxygen जो वो release करता है. What is the function of ovary? Fertilization होता है ovary में. Weeds आपके unwanted plants होते हैं जो कि crop में grow करते हैं. Classify plants and give an example of each. So herbs, shrubs and trees, और इनकी एग्जाम्पल आप दे देंगे. What are herbs, shrubs and trees? ये सब हमने किया है climbers, so आप ये देख लेंगे. ठीक है. So explain an activity to show that stem conduct water. ये वो एक्टिविटी है जो NCERT में दे रखी है कि आप एक वाटर लेंगे ग्लास में, then add few drops of red ink, then cut the stem of a herb plant and put in the glass. Okay, we will see some parts of the stem become colored. जो कि red ink डाला तो red हो जाएगा. This activity shows that stem conduct water. Okay, these are some not directly in the NCERT but related questions. What are unisexual and bisexual flowers? So unisexual means they have either male or female, both part नहीं होंगे, जिसमें सिर्फ एक. uni means only one. Sexual means sexual parts, so reproductive parts. So जिसमें only one reproductive part हो, either male means stamen or female means pistil. Bisexual means they have both male and female whorl in the flower, so they have both stamen and pistil. So name the plant that eat insect. Okay, insectivorous बोलते हैं पीचर प्लांट को. अब क्वेश्चन ये है कि इंसेक्टिवोरस क्यों इंसेक्ट खाते हैं जबकि प्लांट तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं फॉर देयर फूड. सो इसका रीजन है कि पीचर प्लांट जो होता है दे हैव ग्रीन लीव्स, दे कैन प्रिपेयर फूड बट दे गेट नाइट्रोजिनस कंपाउंड. ओके, दैट्स वाई दे ईट इंसेक्ट विच इट कैन नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल. ये सॉइल से नहीं एब्जॉर्ब कर पाते, तो इनको जो नाइट्रोजिनस न्यूट्रिएंट हैं वो चाहिए हैं, तो ये इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं. नेम अ प्लांट दैट हैज अंडरग्राउंड एज वेल एज एरियल रूट सिस्टम. सो बैनियन वो ट्री है जिसमें आपको एरियल रूट्स भी दिखाई देती हैं, अदरवाइज प्लांट्स में नॉर्मली रूट्स आपके अंडरग्राउंड सिस्टम होता है. Why do we see dew drops on leaves in early morning? At night, the water lost by leaves does not get evaporated and gets collected on the leaves in the form of dew drops, जो कि आपका ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस्ट होता है. ओके. Why are petals colorful? जो पेटल्स हैं वो कलरफुल होती हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन. Why does white flowers bloom at night? जो वाइट फ्लावर्स होते हैं वो नाइट में क्यों ब्लूम करते हैं? टू अट्रैक्ट नाइट इंसेक्ट्स. What do you mean by a complete and incomplete flower? Okay. So जिस फ्लावर में आपके सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स सब हों उसको तो बोलते हैं complete flower. Okay, if any one of this is absent then it is known as incomplete flower. Relation between leaf venation and types of root. The plant having taproot, ये आ चुका है, उसमें होता है रेटिकुलेट जिसमें टैप रूट होगा और जिसमें पैरेलल वेनेशन होगा उसमें फाइब्रस रूट्स. नेम द मेल पार्ट ऑफ ए प्लांट. सो स्टेमन, और इसके होते हैं फिलामेंट एंड एंथर पार्ट. फीमेल आपका पिस्टल होता है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है. नाउ लेट्स सी सम MCQs फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, सो इसके MCQs भी हम थोड़े से कर लेते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी, अदरवाइज ये आपको काफ़ी क्लियर हो चुका है चैप्टर. सो फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ ए थिक एंड हार्ड स्टेम इज अ फीचर ऑफ, जिसमें हार्ड और थिक स्टेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्री. ओके.
विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग बींग आर नोन फॉर ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ. सो थ्रू आउट द लाइफ जिनकी ग्रोथ होती है वो होते हैं आपके ट्रीज. रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेपर. सो जो पेपर के लिए हम रॉ मटेरियल लेते हैं वो कहाँ से आता है, वो आता है ट्रीज से. विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन. सो रेटिकुलेट आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो वीट में पैरेलल था, तुलसी में हमने देखा था कि रेटिकुलेट है, बाकी ग्रास मेज इन सब में पैरेलल वेनेशन होता है. इफ ए प्लांट हैज फाइब्रस रूट्स, सो व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन, इसमें होता है पैरेलल वेनेशन. ये तो हमने बहुत बार किया है ना, इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. सो वाटर कम्स आउट ऑफ लीफ, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर. सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, लीव्स इसका पार्ट नहीं है, लीव्स ये सेपरेट पार्ट ऑफ अ प्लांट. इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लावर, तो इनर मोस्ट हमारा पिस्टल है, याद है आपको, पिस्टल इज द इनर मोस्ट. विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइड स्टेम. सो आपका जो मॉडिफाइड स्टेम है वो पोटैटो जो है वो आपका मॉडिफाइड स्टेम है. प्लांट्स विच हैव ब्रांचेज एट द बेस, जिसके बेस में ही ब्रांचेज स्टार्ट हो जाते हैं, उसको आप क्या कहते हैं. आपको कुछ भी याद है कि देखो हर्ब्स तो ग्रीन एंड टेंडर स्टेम होता था, ब्रांच हो भी सकती थी नहीं भी. शर्ब्स में ब्रांचेज बेस से स्टार्ट हो जाती हैं. विच प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए हर्ब. तो हर्ब का कौन सा एग्जाम्पल है. ओके, सो दैट इज वीट. मैंगो इज ए ट्री, चाइना रोज ए शर्ब, सो वीट इज ए हर्ब. अ प्लांट विद वीक स्टेम, सो वीक स्टेम हमारा इसमें है मिंट में. ओके, सो मिंट इज ए वेरी वीक स्टेम. द प्लांट विच टेक द स्पोर्ट ऑफ द नेबरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लाइंब अप, उसको बोलते हैं क्लाइंबर. और अगर वो स्पोर्ट से भी ना हो तो वो स्प्रेड हो जाता है, उसको क्रीपर बोलते हैं. पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रो अबव द ग्राउंड, सो अबव ग्राउंड होगा उसको हम शूट सिस्टम बोलेंगे. जो बिलो द ग्राउंड अगर ग्रो करेगा तो उसको हम बोलेंगे रूट सिस्टम. ओके, सो द पार्ट ऑफ स्टेम इन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, सो उसको बोलते हैं इंटरनोड. द रूट स्टेम लीव्स कॉन्स्टिट्यूट द ब्लैंक पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. सो रूट स्टेम एंड लीव्स ये होते हैं आपका वेजिटेटिव पार्ट. जो फ्लावर होता है वो आपका होता है रिप्रोडक्टिव. द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो इरोजन जो है हमारा कौन सा पार्ट प्रिवेंट करता है, दैट इज द रूट. ओके, द रीजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ विद द स्टेम, उसको हम बोलते हैं पिटियोल. प्लैंक इज ए फ्लावरिंग प्लांट विद नो लीव्स, सो ये होता है हमारा कस्कोटा. ये आप देख सकते हैं कस्कोटा प्लांट, इसमें कोई लीव्स नहीं होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस लीव से नहीं करता है. स्टोमेटा हेल्प इन, स्टोमेटा जो है आपका ये गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है, जो कि लीव के डाउन साइड होते हैं, डाउनवर्ड. तो क्योंकि रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में भी ये हेल्प करेगा, एंड ट्रांसपिरेशन में भी ये हेल्प करेगा. तो यू कैन से ऑल ऑफ दिस. सो द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स वो आपका स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है. अदर नेम ऑफ ओवरी, ओवरी को हम कार्पेल भी बोल सकते हैं. पोलन ग्रेन्स किस में प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर प्रोड्यूस इन एंथर. इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड आई होप ये चैप्टर पे आपका बहुत अच्छी कमांड हो गई होगी. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडी. थैंक यू.